Hello everyone. So today we'll start with the third part of unit 2, which is composed of transistors. Now what are transistors? You already know about transistors. ठीक है, इसके basics जो है you have already done in your school. Transistor basically होता क्या है? It is a 3-terminal device. ठीक है, whose output current, voltage and power, they are controlled by its input current. And what is the use of transistor? It is mostly used as the amplifier. ठीक है, ये तुम लोग ऑलरेडी पहले आई होप पढ़ चुके हो. तो यहाँ पर हम देखेंगे what they have written. Now transistor जो है, it is basically a crystal of germanium और silicon having 3 regions. 2 types के transistors होते हैं, the NPN transistor and the PNP transistor. NPN transistor हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे पास 2 N-type region है और बीच में P-type region है. ठीक है, और you can say that a P-type crystal is sandwiched between 2 N-type regions. And if we have a N-type crystal that is sandwiched between the 2 P-type regions, then that semiconductor becomes the PNP semiconductor. ठीक है, so we have 2 types of semiconductors. One is the NPN and another one is the PNP transistor. देखो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें basically 3 regions होते हैं. One is the emitter, another one is the base and we have a collector. ठीक है, और जो हमारा ट्रांजिस्टर है वी कैन से दैट इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन. देखो मैं एक बार फिगर दिखा देती हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा. देखो ये मेरे पास ट्रांजिस्टर्स हैं. ठीक है, नाउ दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द पीएनपी ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर है वो कैसे बनेगा? When we have a P-type region in between the 2 N-type regions. और हमारा PNP ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा? When we have a N-type region in between the 2 P-type regions. In that case we have a PNP ट्रांजिस्टर. अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 क्रिस्टल्स हैं, N, P और N. ये जो N और P है हमारे regions, this will make a junction over here. ठीक है, Similarly, ये जो P और N है, this will make a junction over here. So we can say that a transistor जो है, it consists of 2 PN junctions. The junctions are formed by sandwiching either P-type or N-type semiconductor layers between a pair of opposite types. ठीक है, 2 हमारे जंक्शंस होते हैं ट्रांजिस्टर में और ये जंक्शन कैसे बनते हैं? पी टाइप या एन टाइप क्रिस्टल को या सेमीकंडक्टर को हम लोग सैंडविच करते हैं बिटवीन अ लेयर ऑफ अपोजिट टाइप्स. अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसको हम सैंडविच करेंगे इन बिटवीन 2 एन टाइप रीजन्स, और अगर हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसको हम सैंडविच करेंगे इन बिटवीन 2 पी टाइप regions. So this is how we can have 2 types of transistors, the NPN and PNP transistor. देखो अब हमारे पास क्या है? Now we have 3 regions, the first region, second region and the third region. Similarly in PNP transistor we have 3 regions, the first, second and the third region. So what is the construction of a transistor? Transistor जो है, it has essentially 3 regions which are known as emitter, base and collector. And all these 3 regions जो हैं, they are basically provided with the terminals which are labeled as E for emitter, B for base and C for collector respectively. देखो इस फिगर में जो हमारा ये फर्स्ट रीजन है इसको हम बोलते हैं एमीटर, सेकंड रीजन को हम बोलते हैं बेस, थर्ड रीजन को हम बोलते हैं कलेक्टर. ये जो हमारे तीनों रीजन्स हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद द टर्मिनल्स. जो एमीटर है उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्मिनल है दैट इज लेबल्ड एज कैपिटल ई. जो बेस है उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्मिनल है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी, और जो कलेक्टर है उसके across जो terminal provided है that is capital C. So E is labeled for emitter, B is labeled for base and C is labeled for collector. ना ये जो emitter, base और collector होते हैं इनका function क्या होता है ना, हम देखेंगे सबसे पहले the function of emitter. ठीक है, emitter का क्या काम होता है? It is a region
that is situated in one side of the transistor. ट्रांजिस्टर के एक साइड में ये एक रीजन है, ठीक है, which supplies charge carriers. अगर n टाइप एमीटर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सप्लाई करेगा, और अगर p टाइप एमीटर है इन पीएनपी ट्रांजिस्टर तो वो होल्स सप्लाई करेगा टू दी अदर टू रीजन्स, ठीक है। तो हमारा अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे जो हमारा एमीटर है दैट विल बी अ एन टाइप रीजन। तो एन टाइप है देन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस एमीटर जो है इट बेसिकली सप्लाइज चार्ज कैरियर्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, डिपेंडिंग हमारा एमीटर एन टाइप है या पी टाइप है, to the other two regions. Other two regions कौन से हैं? The base and the collector. Emitter जो है it supplies the charge carriers to the other two regions. So that's why the emitter is basically a heavily doped region. एमीटर जो है उसको हम हेवीली डोप्ड रखते हैं ताकि हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द एमीटर वी कीप इट हेवीली डोप्ड, ठीक है। सो आफ्टर एमीटर वी हैव अ बेस। बेस कैसा होता है? बेस जो है हमारा इट इज द मिडल रीजन that forms two pn junctions in the transistor. ये एक मिडल रीजन है, ठीक है। npn में ये p है, pnp में ये n है, ठीक है। और ये क्या हेल्प करता है? दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग टू पीएन जंक्शंस इन द ट्रांजिस्टर। एक पीएन जंक्शन हमारा यहाँ बन रहा है, एक पीएन जंक्शन हमारा यहाँ बन रहा है। सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक पीएन जंक्शन हमारा यहाँ बनेगा, एक पीएन जंक्शन हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। तो हमारा बेस क्या होता है? बेसिकली इट इज द मिडल रीजन दैट फॉर्म्स टू पीएन जंक्शंस इन द ट्रांजिस्टर। और बेस हमारा कैसा होता है? द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज थिन। जो ट्रांजिस्टर है हमारा उसका बेस हम थिन, जो बेस है हमारा ट्रांजिस्टर का उसको हम थिन रखते हैं एज कंपेयर टू एमीटर। और ये जो है हमारा बेस दिस इज अ लाइटली डोप्ड रीजन। ये लाइटली डोप्ड हम क्यों लेते हैं ये आगे जाके क्लियर होगा व्हेन वी विल स्टडी द ऑपरेशन ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो हमने एमीटर के लिए क्या देखा? हमारा इट इज अ हेवीली डोप्ड रीजन, ठीक है। बेस हमारा क्या है? बेस इज अ लाइटली डोप्ड रीजन। एमीटर क्या करता है? इट सप्लाइज द चार्ज कैरियर्स टू द बेस एंड द कलेक्टर। नेक्स्ट हमने क्या देखा? जो हमारा बेस है उसकी जो थिकनेस है वो हम कम रखते हैं, ठीक है। द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज थिन, दैट मींस दिस, द थिकनेस जो है बेस की दैट इज थिन एज कंपेयर टू द एमीटर। मतलब एमीटर जो है उसकी थिकनेस जो है वो ज्यादा होती है बेस की थिकनेस से, ठीक है। तो हमने देख लिया व्हाट इज एमीटर, व्हाट इज बेस। नाउ वी विल सी व्हाट इज अ कलेक्टर। नाउ कलेक्टर हमारा क्या है? इट इज आल्सो a region that is situated in the other side of the transistor, that is the side opposite to the emitter. अगर ये हमारा emitter है on the one side तो उसके जो other side पे जो है we'll have a transistor. So transistor you can उसके जो other side पे है we have a collector, ठीक है। So collector जो है it is basically a region situated in the other side of the transistor, that is the side opposite to the emitter. Now what is the function of collector? देखो नाम से पता चल रहा है collector, collecting something. तो collector का function होता है to collect the charge carriers, that is electrons or holes, ठीक है। So what is the function of an emitter? It emits, it supplies the charge carriers. And what is the function of collector? It collects the charge carriers, ठीक है। और जो कलेक्टर होता है ट्रांजिस्टर का इट इज ऑलवेज लार्जर देन द एमीटर एंड बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। एमीटर की थिकनेस जो है बेस की थिकनेस से ज्यादा होती है, बेस जो है वो हमारा बहुत थिन होता है, और जो कलेक्टर है हमारा उसकी थिकनेस एमीटर और बेस दोनों से ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी हुई? कलेक्टर की, उसके बाद एमीटर की, उसके बाद बेस की। बेस जो है हमारा दैट इज थिन एज कंपेयर टू एमीटर। कलेक्टर जो है हमारा उसकी थिकनेस जो है इट इज लार्ज देन द एमीटर एंड द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट थिकनेस हमने देख ली। नाउ व्हाट इज द डोपिंग लेवल? जो डोपिंग लेवल होता है कलेक्टर का दैट इज इंटरमीडिएट
between the heavy doping of emitter and the light doping of the base. हमारा जो emitter है that is the heavily doped region, जो हमारा base होता है that is the lightly doped region. जो collector होता है उसका doping level होता है in between the doping of emitter and the doping of the base, or you can say the doping level of a collector is intermediate between the heavy doping of emitter and the light doping of the base. ठीक है, so these are the three essential regions in a transistor: the emitter, base and collector. ठीक है, I hope ये सबको clear है. Function of emitter is to supply the charge carriers. ठीक है, it is a heavily doped region. Now we have a base, it is a lightly doped region, and the base of the transistor is thin as compared to emitter. Then we have a collector. The function of collector is to collect the charge carriers, that is electrons or holes. ठीक है, और जो collector है हमारा, its thickness is always larger than the emitter as well as the base of the transistor. नेक्स्ट जो डोपिंग लेवल है कलेक्टर का, दैट इज इंटरमीडिएट इन बिटवीन द हैवी डोपिंग ऑफ एमीटर एंड द लाइट डोपिंग ऑफ द बेस. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा हैवीली डोप्ड क्या है हमारा, एमीटर है, उसके बाद कलेक्टर है, उसके बाद बेस है. ठीक है, और थिकनेस सबसे ज्यादा किसकी है, कलेक्टर की है, उसके बाद एमीटर की है, उसके बाद बेस की है. ठीक है, ये अब हमारे पास क्या दिखा रखे हैं, दीज आर दी सिंबल्स. ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है. यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है, दोनों के सिंबल में एरो का डिफरेंस है. एनपीएन में ये जो एरो है हमारा, ये बाहर जा रहा है फ्रॉम बेस टू द एमीटर. पीएनपी में जो है ये हमारा एरो है, ये अंदर की तरफ आ रहा है फ्रॉम एमीटर टू द बेस. ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस होता है. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एमीटर, बेस, कलेक्टर. ये एमीटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है. सिमिलरली यहाँ पे एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है. ठीक है, और एरो से हमें पता चल जाएगा कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है. ये बताने से पहले आगे एक और चीज देख लो. आई टोल्ड यू दैट ट्रांजिस्टर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शंस. ठीक है, कौन कौन से पीएन जंक्शंस है, देखो एक ये है और एक ये है. ये हमारा जो पीएन जंक्शन है ये किसके बीच में बन रहा है, एमीटर और बेस के बीच में. ठीक है, तो इस पीएन जंक्शन को हम बोलते हैं एमीटर बेस जंक्शन. ठीक है, दिस जंक्शन इज नोन एज द एमीटर बेस जंक्शन. नेक्स्ट हमारा ये जो दूसरा पीएन जंक्शन है, दिस इज इन बिटवीन द बेस एंड द कलेक्टर. ठीक है, तो अ जंक्शन दैट इज इन बिटवीन द एमीटर एंड बेस, उसको हम बोलते हैं एमीटर बेस जंक्शन. ठीक है, and the junction that is in between the collector and the base region, that is known as the collector base junction. ठीक है, so we have two types of junctions, the emitter base junction and the collector base junction here. ठीक है, I hope ये सबको clear है. अभी हमने क्या देखा कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं. ठीक है, what are the types of transistors, the NPN transistor and the PNP transistor. उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि ट्रांजिस्टर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शंस. फिर हमने देखा कि व्हाट आर द एसेंशियल रीजन्स ऑफ द ट्रांजिस्टर. देयर आर 3 रीजन्स, द एमीटर, बेस एंड द कलेक्टर. फिर हमने फंक्शन देखा, द फंक्शन ऑफ एमीटर, द फंक्शन ऑफ बेस एंड द फंक्शन ऑफ कलेक्टर. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है. ठीक है, ये बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है जो मैंने बोला है. ये जो शुरू में अब तक मैंने जितना बोला ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, इस सबको पढ़ लेना. ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, द बेस इज लाइटली डोप्ड व्हाइल द डोपिंग ऑफ एमीटर इज क्वाइट हैवी, एमीटर इज हेवीली डोप्ड, बेस इज लाइटली डोप्ड. कलेक्टर की डोपिंग क्या है, इन दोनों के बीच की डोपिंग होती है. ठीक है, और कलेक्टर रीजन जो है इसकी थिकनेस जो है सबसे ज्यादा होती है, और एमीटर जो है हमारा उसकी थिकनेस भी ज्यादा होती है, बट कलेक्टर की थिकनेस से कम होती है. और जो बेस है हमारा वो थिन होता है, उसकी थिकनेस सबसे कम होती है. ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एमीटर है वो सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एमीटर है वो सप्लाई करेगा होल्स को, सिंस होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. यही लिखा है यहाँ पे, देखो द एमीटर region emits electrons in case of NPN transistor and the base
passes most of them to the collector, and the function of collector is to collect the electrons. Now the collector has the job of collecting or gathering these electrons in the case of NPN transistor. Now in the case of PNP transistor, the holes are emitted by the emitter and they are collected by the collector. ये और clear होगा when we'll see the operation of NPN and PNP transistor. Next we know that transistor जो है it has two PN junctions. जो junction है between emitter and base, that is called the emitter base junction or the emitter junction. Similarly, the junction between base and collector is called the collector base junction. So a transistor is like two PN junctions connected back to back. एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर फिगर्स में शो कर रखे हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सिंबल्स भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एरो भी बता चुकी हूँ. एनपीएन में जो एरो है वो बाहर की तरफ होता है, पीएनपी में एरो अंदर की तरफ होता है. ना ये एरो हमें बता क्या रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है एरो की इन द सिंबल ऑफ द ट्रांजिस्टर, इट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट. ये एरो से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है. एनपीएन ट्रांजिस्टर और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर्स हैं उनमें ये जो एरो हेड होता है, दिस बेसिकली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ अ कन्वेंशनल करंट फ्लो इन अ ट्रांजिस्टर. ना इसका मतलब क्या है ये तुम्हें समझ में आ जाएगा व्हेन वील डू द एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर. सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द एनपीएन ट्रांजिस्टर. In NPN transistor, what we have, the emitter base junction of a transistor is forward biased and the collector base junction is reverse biased. ठीक है, मैं इसका सर्किट डायग्राम दिखा देती हूँ पहले. देखो, this is the NPN transistor that is connected in the forward active mode. ठीक है, ये चीजें जो हैं ये तुम्हें पता होनी चाहिए. एक्चुअली ट्रांजिस्टर बायसिंग जो होती है वो तीन तरीके की होती है. देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑपरेशन. एक होता है फॉरवर्ड एक्टिव, एक होता है सैचुरेशन, एक होता है कट ऑफ. फॉरवर्ड एक्टिव क्या होता है, फॉरवर्ड एक्टिव में जो हमारा एमिटर बेस है और जो कलेक्टर बेस है उनमें क्या होता है, कैसी बायसिंग होती है, एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड होता है और जो कलेक्टर बेस होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है. और जो हमारा सैचुरेशन होता है उस मोड में दोनों ही एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस जो है ट्रांजिस्टर के, दे आर कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस्ड. कट ऑफ में क्या होता है, इन दिस मोड बोथ द एमिटर बेस एंड द कलेक्टर बेस जंक्शंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर आर रिवर्स बायस्ड. ठीक है, तीन तरीके की बायसिंग होती है ट्रांजिस्टर में, फॉरवर्ड एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ. हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर बायस्ड इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड. फॉरवर्ड एक्टिव मोड मतलब जो हमारा एमिटर बेस जंक्शन है वो होगा फॉरवर्ड बायस्ड, जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है वो होगा रिवर्स बायस्ड. ठीक है, यूजुअली हम फॉरवर्ड एक्टिव मोड कंसीडर करते हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर. तो यहाँ पर ये जो इन्होंने फिगर बनाई है दैट इज इन द फॉरवर्ड एक्टिव मोड. That means the emitter base of a transistor is forward biased and the collector base junction is reverse biased. यहाँ पर देखो, ये एमीटर है हमारा, ये बेस है, ये एन टाइप ट्रांजिस्टर है तो इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे. सॉरी, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसको जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करेंगे देन वी नो दैट एन टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस पी टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द battery. So this emitter base junction is forward biased. Next, for the collector base junction, it should be in reverse bias mode. तो हमारा ये n type region है, so it should be connected with the positive terminal, और जो p type region है that should be connected to the negative terminal. So the collector base junction is in reverse biased mode. ठीक है, so this is showing the NPN transistor biased in forward active mode. Emitter base junction of a transistor is forward biased and the collector base junction is reverse biased. ठीक है, now अब हमें देखना है that how this transistor works. ठीक है, how a NPN transistor
वर्क्स। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एन टाइप रीजन है विच इज एमीटर, ठीक है। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और हमारा जो एमीटर बेस्ड जंक्शन है दैट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस मोड, ठीक है। तो क्या होगा, जो फॉरवर्ड बायस है एमीटर बेस्ड जंक्शन का, यहाँ पर हमारा नेगेटिव टर्मिनल है ना, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। So the forward bias on the emitter based junction will cause the free electrons in the n type emitter to flow towards the base region, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड बायसिंग है एमीटर बेस्ड जंक्शन की, ये इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेंगे, जो एमीटर में प्रेजेंट है एन टाइप एमीटर में, उसको फोर्स करेंगे टू मूव टूवर्ड्स द बेस रीजन, ठीक है। सो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द एमीटर करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एन टाइप जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज दे विल बी रिपेल्ड बाय दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। सो these electrons that are flowing towards the base of the region from the n type emitter will constitute the emitter current. It will constitute the emitter current, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। एंड दिस एमीटर करंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय आई विद द सबस्क्रिप्ट ई, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है आई ई, दिस इज द एमीटर करंट। नाउ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, जो हमारी डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट आईसी की, इट इज opposite to the flow of current. Therefore, now what happens now? Electrons जो हैं after reaching the base region, एन टाइप एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे अब फ्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स द बेस रीजन। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल कंबाइन विद द होल्स प्रेजेंट इन दिस पी टाइप बेस रीजन। पी टाइप बेस रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं हमारे वो होल्स होते हैं। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेकेंट स्पेसेस प्रेजेंट इन द पी टाइप रीजन। सो व्हाट विल हैपन व्हेन these electrons will move from the n type emitter to the base region, they will tend to combine with the holes, ठीक है, वो होल्स के साथ कंबाइन होने की कोशिश करेंगे। इस वजह से जो हमारी विड्थ होती है बेस की, the width of the base is made extremely small and electrons do not get sufficient holes for recombination. इस वजह से जो width होती है बेस की, यहाँ पर देखो हमने n को बड़ा बनाया है, p को बहुत ही पतला बनाया है, ठीक है, क्योंकि जो width है बेस की ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, हम इसको थिन रखते हैं, इसकी विड्थ जो है हम उसको कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी विड्थ को ज्यादा रखेंगे तो रिकॉम्बिनेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का इन द बेस रीजन वो ज्यादा होगा, एंड वी शुड हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing across the junction to have large current, so we should avoid this recombination. So to avoid this recombination, we keep the base width to be extremely small. और इसी वजह से हम जो बेस रीजन है उसको लाइटली डोप्ड रखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डोप्ड होगा उतने ही ज्यादा होल्स प्रेजेंट होंगे। इसको हम लाइटली डोप्ड रखेंगे ताकि कम होल्स प्रेजेंट हो और कम रिकॉम्बिनेशन हो। और जो हमारा एमीटर है उसको हम हेवीली डोप्ड रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप रीजन, एन टाइप एमीटर में हो, जो फिर मूव करेंगे towards the base of the region because of the forward biasing of emitter base junction. So when these electrons from the n type region or n type emitter enter to the base region, then they will tend to combine with the holes present in the base. So because of this reason, base width is made extremely small and the electrons do not get sufficient holes for recombination. ठीक है, अब क्या होगा,
देखो नाउ दिस कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है इट इज रिवर्स्ड बाइस्ड, तो यहाँ पर जो है वी हैव अ पॉजिटिव टर्मिनल। अभी जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है नाउ दिस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस most of the electrons after passing through the base region will diffuse to the collector region and will constitute the collector current IC। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये जो हमारा कलेक्टर करंट है ना आईसी, इसको हम इंजेक्टेड करंट भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज दिस करंट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम द एमीटर रीजन। ये करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ है हमारा, ये प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आ रहे हैं फ्रॉम द एन टाइप एमीटर रीजन। और ये जो हमारा IB है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द बेस करंट। ठीक है, हमारा क्या होता है, when these electrons from the n type emitter they move towards the base, then what happens, some free electrons will combine with the holes in the base and they will constitute the base current IB। तो usually this base current is very very स्मॉल, बेस करंट बहुत कम होता है बिकॉज पी टाइप रीजन जो है इट इज लाइटली डोप्ड, मोरओवर इट्स विड्थ इज आल्सो मेड एक्सट्रीमली स्मॉल टू हैव less number of recombination of electrons with holes in the base, and most of the electrons जो है so that they can reach to the collector region and will constitute the collector current। ठीक है, सो दिस इज हाउ एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क। सिंपल है, फॉरवर्ड बाइसिंग मोड की वजह से जो एन टाइप एमीटर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दे विल बी नाउ फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स द बेस। बेस रीजन को हम लाइटली डोप्ड रखेंगे, इसकी विड्थ को भी कम रखेंगे ताकि जो है रिकॉम्बिनेशन जो है बेस रीजन में कम से कम हो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। ठीक है, फिर ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है नाउ दे विल मूव टुवर्ड्स द कलेक्टर रीजन एंड विल कॉन्स्टिट्यूट द कलेक्टर करंट। So from here we can say that IE is equal to IB plus IC. The emitter current is equal to the sum of base current and the collector current। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है that कलेक्टर करंट जो है उसमें हमारा एक और कंपोनेंट होता है विच इज कॉल्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्यों होता है, देखो हमारा ये जो पीएन जंक्शन है द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दिस इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड, ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड में कनेक्टेड है। तो एन टाइप रीजन जो है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एन टाइप में हमारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे क्या हैं, होल्स। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ये होल्स को रिपेल करेगा टू मूव टुवर्ड्स द बेस। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है ये पी टाइप रीजन में हमारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा टू मूव टुवर्ड्स द एन टाइप कलेक्टर। तो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है यहाँ पर कुछ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं now they will be able to cross this collector based junction because of the reverse biasing of the collector based junction। तो इस वजह से because of the flow of this minority charge carriers a very less current will flow and that current is known as the reverse saturation current। ठीक है, तो collector current जो है it is basically composed of two, one is the injected current, ठीक है, that is because of the electrons injected from the emitter region, and the another component of collector current is the reverse saturation current which is quite small and it is because of the flow of thermally generated minority charge carriers because of the reverse biasing of the collector base junction। ठीक है, तो हमारा जो एमीटर करंट है ट्रांजिस्टर का इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट। जो हमारा बेस करंट होता है वो बहुत कम होता है, इट इज ओनली अबाउट 2% ऑफ द एमीटर करंट, और जो कलेक्टर करंट है हमारा इट इज अबाउट 98% ऑफ द एमीटर करंट। थोड़ा सा ही रिकॉम्बिनेशन होता है बेस रीजन में, तो थोड़ा सा ही बेस करंट जो है वो फ्लो होता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है they are able to reach the collector, so we have a large collector current but it is less than the emitter current, and the collector current जो है it is about 95 to 98% of the emitter current। collector current बढ़ेगा तो base current कम होगा such that emitter current is equal to IB plus IC।
मोस्टली जो कलेक्टर करंट होता है इट इज मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम द एमीटर। ठीक है, जो दूसरा कंपोनेंट है कलेक्टर करंट का विच इज बिकॉज ऑफ द थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज कॉल्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, आई होप यहाँ पर सबको ये चीज क्लियर है। मैंने जो ना भी तुम लोगों को समझाया ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, द एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको यहाँ से पढ़ सकते हो और अगर एग्जाम में चाहते हो तो जिस तरीके से मैंने बोला है डिटो उसी तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो यही यहाँ पे लिखा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर रीचिंग द बेस कलेक्टर जंक्शन दे विल बी नाउ अट्रैक्टेड टू द कलेक्टर रीजन ड्यू टू द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर। कलेक्टर जो है हमारा दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो दिस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम द एमीटर एंड they are now moving towards the base and then to the collector. So almost all the free electrons जो है they are now extracted by the collector. Now collector का function क्या है? To collect the charge carriers. इस वजह से collector की जो width है वो हम सबसे ज्यादा रखते हैं so that it can collect the maximum number of charge carriers injected from the emitter current. So only 2 to 5% of electrons जो है they recombine with the holes in the base region and constitute the base current. तो usually हमारा जो base current है वो बहुत कम होता है और जो collector current है that is in between 95 to 98% of the emitter current. ठीक है, नाउ अब ये चीज बता रहा है कि अब तक हमने क्या देखा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट हमारे पास एक और कंपोनेंट है, यहाँ पर देख लो इसको, यहाँ से समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी बोला था। जो हमारा एमीटर करंट होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट। ठीक है, अगर हमारा कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो हमारा बेस करंट कम होगा सच दैट आई जो है वो हमारा कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट, ये जो हमारा कलेक्टर करंट है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, द वन इज बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द वन इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज डिनोटेड बाय आई मेजॉरिटी, और जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज बिकॉज ऑफ द रिवर्स बाइसिंग ऑफ कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, उस करंट को हम बोलते हैं द लीकेज करंट और द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय ICO, दैट मींस करंट विद एमीटर ओपन, और यू कैन से इट इज ऑल्सो रिटन एज ICBO, मतलब करंट जो है दैट इज फ्लोइंग because of the reverse biasing of the collector based junction with emitter open। ठीक है, ये हमारा क्यों फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बाइसिंग ऑफ एमीटर बेस्ड जंक्शन। यहाँ पर जो है हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल करंट विच इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, एंड इन दिस केस आवर एमीटर इज ओपन। So we can say that the emitter current IE is equal to IB plus I majority plus ICO, where I majority plus ICO जो है that is representing the collector current। ठीक है, तो I hope ये सबको clear है कि how a NPN transistor works। NPN transistor जो है हमारा वो किस तरीके से work करता है। ठीक है, और ये लीकेज करंट जो है आई होप इसका भी तुम लोगों को आइडिया लग गया हो कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पीएन जंक्शन की फंक्शन तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, व्हेन इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस मोड। सो नाउ आफ्टर दिस वी विल नाउ प्रोसीड विद द ऑपरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। हियर आल्सो द पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है इट इज कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड एक्टिव मोड, that means the emitter based junction is forward biased and the collector based junction is reverse biased। तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पे emitter जो है that is a p type semiconductor, so it will be connected to the positive terminal and this n type base is connected to the negative terminal, so this is connected in forward bias mode, so we can say that emitter based junction is forward biased। Similarly here the collector based junction is reverse biased। जो हमारा p type semiconductor है which is the collector that is connected to the negative terminal, और जो n type है that is connected to the positive terminal। ठीक है,
देखो यहाँ पे मैंने एक चीज और बतानी थी तुम्हें, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है इसका एरो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एमीटर से दूर, ठीक है, फ्रॉम एमीटर से ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हम इस तरीके से आएंगे तो देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द एमीटर, ठीक है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है इस तरीके से है, ठीक है। अब देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या हो रहा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो हमारा IE है वो ऐसे जा रहा है, मतलब इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस वजह से ये करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से इसका एरो जो है ये अंदर की तरफ होता है, ठीक है। सो ये जो हमारे एरो हेड्स हैं दे बेसिकली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। नाउ we'll study the action of PNP ट्रांजिस्टर। ना PNP ट्रांजिस्टर में क्या होगा, जो ऑपरेशन है हमारा PNP ट्रांजिस्टर का दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, बस फर्क क्या होगा, जो करंट है PNP ट्रांजिस्टर में इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ होल्स, और जो NPN ट्रांजिस्टर में है दैट वी नो इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये फिगर शो कर रहा है PNP ट्रांजिस्टर। Here the emitter based junction is forward biased and the collector based junction is reverse biased. Now जो forward biasing है emitter based junction की, ये क्या करेगी, ये holes को repel करेगी जो p type emitter में present है। So the forward bias on the emitter based junction will cause the holes in the emitter region to flow towards the base region. Now this will constitute the emitter current. Current की direction कहाँ होगी, from positive to negative. Now next, holes जो है now they will reach into the base region, so they will now tend to combine with the electrons present in the n-type base region. Now if these holes combine with the electrons in the base, then they will constitute the base current. So most of the holes जो है they will not combine with the electrons in the base region. Why? Because we are making the base width to be extremely small, so that most of the holes जो है they will be able to move to the collector region, most of the holes जो है, so that they do not get sufficient electrons for recombination. That's why we keep the base width to be very small, and we also make this base to be a lightly doped region. Now this is the reason, so that recombination of electrons and holes can be minimized. Now what happens next, जो हमारा collector based junction है that is in the reverse bias mode, so most of the holes जो है they will now diffuse to the collector region and they will now constitute the collector current, ठीक है। Why these holes are diffused to the collector region? Because of the negative terminal of the reverse biasing. जो हमारा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है उसमें हमारा ये जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर, ये क्या करेगा, दिस विल नाउ अट्रैक्ट द होल्स, सो द होल्स विल डिफ्यूज टू द कलेक्टर रीजन एंड विल कॉन्स्टिट्यूट द कलेक्टर करंट। नाउ ये जो हमारा कलेक्टर करंट है दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सो इसको हम इंजेक्टेड करंट भी कहते हैं, बिकॉज ये करंट जो है हमारा दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम द एमिटर रीजन, ठीक है। और इसमें भी देयर इज अनदर स्मॉल कंपोनेंट ऑफ कलेक्टर करंट विच इज बिकॉज ऑफ द थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स, और इस करंट कंपोनेंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। और कन्वेंशनल डायरेक्शंस जो है एमीटर बेस और कलेक्टर करंट की, ये यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। IE की ये डायरेक्शन है, IB की ये डायरेक्शन है, ठीक है। IC की भी हमारी ये डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो हियर आल्सो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, where IC जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, द वन इज I majority, that is because of the flow of holes, and the another one is ICO or ICBO, that is because of the reverse biasing of the collector base junction, and this is known as the reverse saturation current, ठीक है। आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है द फंक्शन ऑफ NPN and PNP ट्रांजिस्टर।
होप ये भी सबको क्लियर है कि क्यों एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम एरो बाहर की तरफ बनाते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम एरो अंदर की तरफ बनाते हैं। क्यों? बिकॉज वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ अ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कन्वेंशनल करंट जो हमारा करंट होता है उसकी डायरेक्शन जो अपोजिट होती है टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम डायरेक्शन होती है टू द मोशन ऑफ होल्स। ठीक है, अब देखो हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको हम अगर मैं सिर्फ करंट के फॉर्म में बनाऊं, ठीक है, तो उसको मैं किस तरीके से बना सकती हूँ। देखो ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये मेरे 3 टर्मिनल्स हैं। वन इज द एमीटर टर्मिनल, द बेस टर्मिनल एंड द कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट, बाहर की तरफ जा रहा है आईई। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आईई हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नाउ दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बेस करंट IB, such that IE is equal to IB plus IC, where IC जो है हमारा that is the collector current। ये हमारा इस डायरेक्शन में है, देखो ये इस डायरेक्शन में है ना, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, so this is IC, so from here we can say that IE is equal to IB plus IC। तो यहाँ पर देखो एमीटर से ये बाहर की तरफ जा रहा है, the direction of conventional current। ठीक है, इस तरीके से है ना, so that's why NPN ट्रांजिस्टर में हम एरो बाहर की तरफ बनाते हैं। और पीएनपी में हमारे पास क्या होता है, देखो ये पीएनपी है हमारा, यहाँ पर हमारा ये आईई है, ये आईबी है और ये हमारा आईसी है। सो आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। और यहाँ पे देखो एरो जो है हमारा, इसकी जो डायरेक्शन है अंदर की तरफ है, इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम एरो अंदर की तरफ बनाते हैं। ठीक है, और यूजुअली जो हमारा बेस करंट है वो बहुत स्मॉल होता है। सो we can say that if base current is very small, then emitter current is nearly equal to the collector current, since IE is equal to IB plus IC। IB को हम यूजुअली बहुत कम रखते हैं। ठीक है, हमारा जो IC होता है वो हमारा क्या होता है, it is जो है, you can say that it is about 95 to 98% of the emitter current। और जो हमारा base current होता है, it is about 2 to 5% of the emitter current। ठीक है, if we consider base current to be very small, then we can say that emitter current जो है it is nearly equal to collector current। I hope यहाँ पर सबको क्लियर है, the action of PNP transistors as well। जो मैंने बोला है यहाँ पर वो सब लिखा है। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना, समझाना ज्यादा जरूरी है, रीड तो तुम अपने आप कर लोगे। सो हियर आल्सो IE is equal to IB plus IC, and here current is due to holes, and whereas current in external circuit is due to the electrons। हम अगर कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट का मतलब क्या है, देखो इसको समझो। एक्सटर्नल सर्किट का मतलब है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ठीक है, यहाँ पर करंट जो है दैट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में है, करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वही फ्लो करते हैं ना वायर में। जो होल्स हैं हमारे, हम एक तरीके से उनको बोलते हैं वेकेंट स्पेस है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है ना, तो हमारा now next is the DC current gain in a common base configuration। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, common base configuration। तो इस DC करंट गेन को करने से पहले हम एक टॉपिक पहले करेंगे, which is the 3 configuration of a transistor। the 3 configuration of a transistor। now इसका मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर्स जो है हमारे बेसिकली वो उनके जो है 3 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। 3 डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस जो है हम ट्रांजिस्टर में कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्मिनल्स व्हिच आर यूज्ड एज कॉमन टर्मिनल्स, द ट्रांजिस्टर जो है दैट कैन बी कनेक्टेड इन द 3 डिफरेंट कनेक्शंस और कॉन्फ़िगरेशंस। इसका मतलब क्या है, देखो आई होप एनपीएन और पीएनपी की वर्किंग सबको क्लियर है। एनपीएन में जो हमारे करंट होता है IE दैट इज इक्वल टू IB प्लस IC। IC में हमारे पास जो करंट है दैट इज I majority प्लस द रिवर्स सैचुरेशन करंट। I majority इज द करंट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें एमीटर में जो मेजॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट जो है दैट इज फ्लोइंग, इट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ
होल्स, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब ये चीज समझने के बाद तुम्हें 3 कॉन्फ़िगरेशंस और समझनी है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट डिपेंड्स अपॉन द टर्मिनल दैट वी आर यूजिंग एज द कॉमन टर्मिनल। हमारे पास 3 टर्मिनल्स है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अगर हम बेस टर्मिनल को कॉमन रखें, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम एमीटर टर्मिनल को कॉमन रखें तो उसको हम बोलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन। अगर हम कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन रखें तो हम उसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन। ना इसका मतलब क्या है? देखो, दिस इज शोइंग एनपीएन ट्रांजिस्टर इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज शोइंग इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज शोइंग इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ना अभी जब हमने ऑपरेशन पढ़ा था एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का, वहां पर हमने क्या किया था? वहां पर हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंसीडर करी थी। वहां पे जो हमारा बेस टर्मिनल था वो हमारा कॉमन था। कॉमन बेस कनेक्शन का मतलब क्या है? इस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर है that is connected with the base as a common terminal as shown in this figure। ये जो हमारा बेस है ये कॉमन है, ठीक है। जो हमारा इनपुट है दैट इज अप्लाइड बिटवीन द एमीटर एंड बेस टर्मिनल, ये एमीटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है। यहाँ पर हमने इनपुट जो है उसको अप्लाई करा है, ठीक है। जो हमारा इनपुट है दैट इज अप्लाइड बिटवीन द एमीटर एंड बेस टर्मिनल, और जो आउटपुट है हमारा दैट इज टेकन बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल, ठीक है। और हमने इसी कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया था टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन और द एक्शन ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। यहाँ पर हमने बेस को कॉमन रखा है, ठीक है। सो दिस इज द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो हमारा इनपुट है दिस इज द एमीटर बेस, जो आउटपुट है दैट इज द कलेक्ट। ये जो हमारा जंक्शन है दिस इज द एमीटर बेस जंक्शन एंड दिस जंक्शन इज नोन एज द कलेक्टर बेस जंक्शन। नाउ वी हैव दिस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखो एमीटर हमारा कॉमन है, तो ट्रांजिस्टर जो है उसको हमने, ट्रांजिस्टर का सिंबल चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। अब एमीटर जो है उसको हमें कॉमन रखना है इन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। सो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड विद द एमीटर एज द कॉमन टर्मिनल। एमीटर जो है अब ये कॉमन टर्मिनल है इनपुट का भी और आउटपुट का भी। यहाँ पर बेस हमारा कॉमन टर्मिनल था इनपुट का भी और आउटपुट का भी, ठीक है। यहाँ इनपुट करंट हमारा क्या है? एमीटर करंट कॉमन बेस में। आउटपुट करंट हमारा क्या है? कलेक्टर करंट। यहाँ पर हमारा इनपुट करंट क्या होगा? बेस करंट, और आउटपुट क्या होगा? कलेक्टर करंट, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। यहाँ पे इनपुट जो है दैट इज अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड द एमीटर टर्मिनल, और आउटपुट जो है दैट इज टेकन बिटवीन द कलेक्टर एंड एमीटर टर्मिनल्स, ठीक है। और ये जो हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कनेक्शंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। आगे जब हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज टू बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। The most important application of transistor is its use as an amplifier. So for this, the connection that we consider is the common emitter connection or the common emitter configuration. Now here this junction is our emitter base, this input जो है हमारा this is the emitter base junction and the output is representing the collector emitter, ठीक है। यहाँ पे हमारा कलेक्टर एमीटर है और यहाँ पर इनपुट हमारा क्या है? कॉमन किसके बीच में है? बेस और एमीटर के। तो यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज होगा दैट विल बी VBE, और यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज होगा आउटपुट वोल्टेज दैट विल बी VCE, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा क्या है? बेस कॉमन है इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो यहाँ पर जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा दैट विल बी VEB, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा दैट विल बी VCB, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिस इज एमीटर बेस, दिस इज कलेक्टर बेस। यहाँ पर ये हमारा एमीटर बेस है या बेस एमीटर है, ये कॉमन, और ये हमारा कलेक्टर एमीटर है। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज होगी VBE, आउटपुट वोल्टेज होगी VCE। इनपुट करंट होगा IB द बेस करंट, आउटपुट करंट होगा IC द कलेक्टर करंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये चीजें और क्लियर होंगी जब हम आगे जो है हमें यही पढ़ना है। इसके बाद ये समझने के बाद तीनों कनेक्शंस, तीनों कॉन्फ़िगरेशंस, फिर उसके बाद हम यही पढ़ेंगे
कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर की, कि ट्रांजिस्टर जो है जब कॉमन बेस में कनेक्टेड है तो उसकी हम सारी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, फिर कॉमन एमीटर में, फिर उसके बाद कॉमन कलेक्टर में। तो वहां पे ये सारी चीजें जो है तुम लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि VBE क्या होता है, VCB क्या होता है, VBE, VCE, VCB या VBC, VEC, ये सब क्या होते हैं, इनपुट करंट क्या होगा, आउटपुट करंट क्या होगा, इनपुट वोल्टेज क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, और हम सब में जो है ट्रांजिस्टर्स जो है उसको कनेक्ट करेंगे इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड। जो हमारा फर्स्ट जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होगा, जो सेकंड जंक्शन है वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर है दैट इज कनेक्टेड विद कलेक्टर एज अ कॉमन टर्मिनल। इनपुट जो है इट इज अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड द कॉमन टर्मिनल, between the base and the collector terminal, और जो हमारा आउटपुट है दैट इज टेकन बिटवीन द एमीटर एंड द कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, ये हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ देखो कलेक्टर हमारा कॉमन है, इनपुट जो है हमारा दैट इज अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड कलेक्टर, और जो आउटपुट है हमारा दैट इज अप्लाइड बिटवीन द एमीटर एंड द कलेक्टर। ठीक है, और अभी जो हमने एक्शन स्टडी किया था एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का, वहां पर हमने कंसीडर किया था द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है यहाँ पर व्हाट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास एमीटर जो है वो कॉमन टर्मिनल होता है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। ठीक है, और जो हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है वहां पर जो हमारा कलेक्टर है वो कॉमन टर्मिनल होता है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। सिमिलरली इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा बेस होता है वो कॉमन टर्मिनल होता है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। आई होप अब सबको क्लियर हो व्हाट इज अ कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, और ये किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं इन अ सर्किट वो यहाँ पर ऑलरेडी given है कि how we can connect NPN transistor in common base mode, in common emitter mode and in common collector mode. ठीक है, now what will be next now, अब हम देखेंगे this thing, the DC current gain in common base configuration। इसका मतलब क्या है, करंट जो है वो हम निकालेंगे द करंट गेन, DC करंट गेन। हम अगर ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कंसीडर करते हैं, इट कैन बी ईदर एनपीएन और पीएनपी। Let us consider a transistor. It can be an NPN transistor or a PNP transistor. Consider in the common base configuration. ठीक है, जो हमने अब तक अभी देखा। ठीक है, कॉमन एमीटर कॉमन कलेक्टर क्लियर होगा जब हम आगे उनको इन डिटेल पढ़ेंगे। ना हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया, तो हियर जो हमारा इनपुट करंट होगा दैट विल बी द एमीटर करंट, और जो हमारा आउटपुट करंट होगा दैट विल बी द कलेक्टर करंट। ठीक है, तो ये जो रेशियो होती है ऑफ द ट्रांजिस्टर आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, इसको हम कहते हैं करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, the ratio of the transistor output current to the input current is called current gain of a transistor। यहाँ पर हम current gain निकाल रहे हैं in common base configuration। So here the current gain will be equal to the ratio of collector current to the emitter current, because collector current is the output current and emitter current is the input current। ठीक है, और ये जो हमारा इनपुट और आउटपुट करंट है इट कैन बी ईदर डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। सो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ करंट गेन्स, द डीसी करंट गेन एंड द एसी करंट गेन। ठीक है, डीसी करंट गेन कब होता है, व्हेन वी आर कंसीडरिंग द इनपुट एंड आउटपुट करंट टू बी द डायरेक्ट करंट। AC करंट गेन कब होता है, when we are considering the input and the output current as the alternating current। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, DC करंट गेन इज डिनोटेड बाय अल्फा DC। ठीक है, एंड फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट करंट। सो हियर आउटपुट करंट इज IC, इनपुट करंट इज I
E. So the ratio of collector current to the emitter current is called the DC current gain in common base configuration. Thus DC current gain is the ratio of collector current to the emitter current in the common base configuration. और हमें पता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में IE हमारा क्या है, दैट इज इक्वल टू IB प्लस IC. ठीक है, वो हमें पता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट कलेक्टर करंट जो है इट इज लेस देन द एमीटर करंट. कुछ बेस करंट भी होता है ना. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो करंट गेन है ट्रांजिस्टर का इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी. ये जो अल्फा डीसी है हमारा इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट कलेक्टर करंट इज ऑलवेज लेस देन द एमीटर करंट व्हेन वी हैव अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. कुछ बेस करंट भी है ना. सो कलेक्टर करंट जो है इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 95 to 98% ऑफ द एमीटर करंट. सो जितना कलेक्टर करंट जो है एमीटर करंट के आसपास होगा उतना ही ज्यादा जो है करंट गेन होगा. बट यूजुअली करंट गेन जो है हमारा इट इज लेस देन 1. अगर कलेक्टर करंट जो है हम कहते हैं, सपोज यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इफ वी से कलेक्टर करंट इज 3.95 मिली एम्पियर एंड द एमीटर करंट इज 4 मिली एम्पियर, देन इन दैट केस आवर डीसी करंट गेन बिकम्स 0.99. तो हमें अगर कलेक्टर करंट को बढ़ाना है, दैट मीन्स अगर हमें ये डीसी करंट गेन जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इसको बढ़ाना है तो हमें IB को कम करना पड़ेगा. बिकॉज IE इज IB प्लस IC. IB को हम कम कैसे करेंगे? बाय keeping the base region to be thin and lightly doped. So the thinner and more lightly doped is the base, greater is the value of alpha DC. जितना thin हम base को लेंगे, जितना lightly dope हम base को रखेंगे, उतना ही base current कम होगा. That means उतना ही collector current ज्यादा होगा. तो collector current अगर ज्यादा होगा, then this ratio will increase. So alpha DC will increase if collector current increases and the base current decreases, such that IE is equal to IB plus IC. कलेक्टर करंट कभी भी एमीटर करंट से ज्यादा नहीं हो सकता. सो अल्फा डीसी वी कैन से दैट यूजुअली इट इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. अब यहाँ पर ये एक चीज और है, ये मैं और बताना चाहूंगी. देखो हमने ये इक्वेशन लिखी थी, IC हमारा क्या होता है, I majority plus ICO, where I majority is because of the flow of majority charge carriers, that is the injected current, that is because of the injected electrons from the emitter. This ICO or ICBO is because of the minority charge carriers. ठीक है, and this is known as the reverse saturation current or the leakage current. ठीक है. अब ये क्या कहता है, अल्फा डीसी जो है इट इज द फ्रैक्शन ऑफ करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो कितना करंट जो है वो फ्लो हुआ, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच रीच द कलेक्टर. और यू कैन से दैट दिस अल्फा डीसी इज इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं ना इन जनरल IC अपॉन IE. लेट्स से दिस IC is because of the flow of majority charge carriers. This collector current is only because of the majority charge carriers, not because of minority charge carriers. Then in that case, this IC becomes I majority and we can write I majority as alpha DC into IE. जैसे यहाँ पर लिखा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, IC minus ICO divided by IE is equal to alpha DC. And we know this reverse saturation current, which is because of the flow of minority charge carriers, this is very small as compared to the total current. So we can neglect this in comparison to IC and we can write simply alpha DC as the ratio of collector current to the emitter current. Here we have neglected the current because of the minority charge carriers or the reverse saturation current being very small as compared to the total current. तो हम ये कहते हैं अल्फा डीसी जो है हमारा ये रेशियो है of the collector current to the emitter current. और ये usually जो collector current है this is because of the current due to majority charge carriers. This current is because of the current. This current is because of the flow of majority charge
कैरियर्स। बट यूजुअली जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। सो वी कैन से दैट दिस IC जो है दिस इज इक्वल टू I मेजॉरिटी। वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म एंड वी कैन से दैट अल्फा DC इज IC अपॉन IE, वेयर IC इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है। So this is about the DC current gain in common base configuration. The DC current gain of a transistor in common base configuration. ये एक example भी given है, हमें current gain given है transistor का common base configuration में 0.98। बेस करंट हमें निकालना है अगर एमीटर करंट गिवन है। हमें पता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में द करंट गेन इज IC अपॉन IE व्हिच इज गिवन टू बी 0.98। ठीक है, IE हमें गिवन है 5 मिली एम्पियर, सो वी कैन फाइंड IC यूजिंग दिस एक्सप्रेशन व्हिच इज अल्फा DC इनटू IE and it comes out to be 4.9 milliamperes, and we know that the emitter current is equal to the sum of base and collector current. IE हमें पता है 5 मिली एम्पियर्स, IC हमने निकाल लिया 4.9 मिली एम्पियर्स, सो वी कैन गेट IB एज IE माइनस IC which comes out to be 0.1 मिली एम्पियर। तो ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ जाते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है दैट एमीटर करंट जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखना जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया है एग्जाम में उसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखा है। अगर common base configuration लिखा है then you know that DC current gain of a transistor in common base configuration is simply equal to the ratio of collector current to the emitter current। ठीक है, so substitute this value over here, you will get the answer। ठीक है, usually in general DC current gain is the ratio of output current to the input current। अगर कॉमन बेस है तो हमारा आउटपुट करंट जो है वो IC होगा, इनपुट करंट जो है IE होगा। अगर कॉमन एमीटर है तो हमारा जो आउटपुट करंट होगा वो कलेक्टर करंट होगा, जो इनपुट करंट होगा वो बेस करंट होगा IB। ठीक है, ये सारी चीजें तुम लोग को क्लियर होंगी जब हम आगे कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो अभी आज जितना समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो तुम लोगों को नहीं समझ में आया, स्पेशली मुझे क्या लगता है जो तुम लोगों को स्पेशली डाउट हो सकती है वो होगी इन थ्री कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, कि किस तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग, किस तरीके से रिवर्स बायसिंग करेंगे, कैसे कॉमन टर्मिनल आएगा, कैसे इनपुट अप्लाई करेंगे, कैसे आउटपुट मेजर करेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो अभी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को अभी हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, पूरा सर्किट डायग्राम बना के, कि किस तरीके से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं टू स्टडी द कॉमन बेस, कॉमन एमीटर and common collector characteristics of NPN and PNP transistor। पूरा सर्किट डायग्राम हम देखेंगे तो वहां तुम्हें क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग करते हैं, किस तरीके से हम इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और आउटपुट करंट को मेजर करते हैं और किस तरीके से हम उनको प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये चीजें तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स में भी हैं जो तुम आगे जाके पढ़ोगे इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में तुम लोग पूरे ग्राफ प्लॉट करोगे कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर मोड में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब बीच में एक टॉपिक और बचा है, द स्टैंडर्ड नोटेशंस। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखना। स्टैंडर्ड नोटेशंस जो है हमारी क्या होती हैं, AC और DC के लिए अलग अलग होती हैं। जब हम DC वैल्यू की बात करते हैं तो वहां पर हम कैपिटल्स यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स। जहां हम AC की बात करते हैं वहां हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है। तुम्हें इन नोटेशन से पता चल जाना चाहिए कि हम DC की बात कर रहे हैं या हम AC की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा जो सबस्क्रिप्ट है वो लोअर केस है, दैट मीन्स हम उसको डेजिग्नेट कर रहे हैं एज द AC वैल्यू, और अगर जो हमारा सबस्क्रिप्ट है वो अपर केस है दैट मीन्स हम उसको डेजिग्नेट कर रहे हैं द DC वैल्यू। सपोज मैंने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वोल्टेज लिखी VEB, अगर मैं EB को कैपिटल लिख रही हूँ दैट मीन्स इट इज डेजिग्नेटेड फॉर द DC वैल्यू। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द DC वोल्टेज। और अगर मैं लिख रही हूँ VEB देन दिस इज रिप्रेजेंटिंग द AC वैल्यू।
AC वोल्टेज। ठीक है, कैपिटल्स यूज कर रही हूं अगर मैं, तो वहां पर अगर मैं अपर केस सबस्क्रिप्ट यूज कर रही हूं, दैट मीन्स इट इज डेजिग्नेटेड एज द DC वैल्यू, and if I'm using the lower case subscript, then it designates the AC value. ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में VEB जो है, दिस इज नोन एज द एमीटर बेस वोल्टेज। ठीक है, द इनपुट वोल्टेज, दिस इज representing the DC value, this is representing the AC value। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, the instantaneous values of quantities which vary with time are represented by small letters। जो time varying quantities हैं उनको हम small letters से डिनोट करते हैं, जैसे I and V। और जो हमारी ऐसी क्वांटिटीज है which are not varying with time, उनको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, जैसे I which is representing current, V is representing voltage। ठीक है, चाहे वो हमारा DC हो या RMS हो। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यूज को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने दोनों को कैपिटल V, मैंने दोनों में कैपिटल रखा है ना। देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब ऐसी क्वांटिटी दैट इज वेरिंग विद टाइम, उसको हम स्मॉल जो है लेटर से यूज करते हैं। I, small I for current, small v for voltage। Capital letters are used to indicate either DC or the AC value. That is, the effective values of current is represented by I and the effective value of voltage is represented by capital V. Moreover, अगर हमारी एवरेज वैल्यू है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे कैपिटल सबस्क्रिप्ट और द अपर केस सबस्क्रिप्ट, जैसे मैंने यहाँ बताया। अगर मैं IE यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द DC करंट, IE, and this is not the instantaneous current क्योंकि I मैंने कैपिटल लिया है। This is representing the effective value of emitter current। और अगर मैं स्मॉल यूज कर रही हूँ E, that means effective value तो है बट किसकी है, this is representing the RMS or the AC value, the effective value of current। ठीक है, अगर मैं स्मॉल लेटर से यूज कर रही हूँ। ठीक है, और जो टाइम वेरिंग कंपोनेंट्स है हमारे, वो स्मॉल लेटर सबस्क्रिप्ट से डिनोट होते हैं। लाइक AC कंपोनेंट जो है हमारे, वो स्मॉल लेटर से डिनोटेड होते हैं। जो मैग्नीट्यूड है DC सप्लाई का, इट इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग डबल सबस्क्रिप्ट, जैसे VCC जो है, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ DC सप्लाई इन द कलेक्टर सर्किट। ये सब क्या सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल्स जो है तुम लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या है क्या नहीं है, बस इन चीज का ध्यान रखना। जो हमारे DC कंपोनेंट होते हैं उनमें यहाँ हम सबस्क्रिप्ट में कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, और जो AC वैल्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोअर केस सबस्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं। कैपिटल I और कैपिटल V जो है हमारी रिप्रेजेंट करती हैं इफेक्टिव वैल्यूज, स्मॉल I और स्मॉल v हमारा रिप्रेजेंट करता है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, और ये जो यहाँ पर लिखा है लास्ट पॉइंट कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है DC सप्लाई का, इट इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग डबल सबस्क्रिप्ट्स, दैट इज VCC। ये सब तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा व्हेन वी विल सी द कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर सेपरेटली। ठीक है, ये सब क्लियर होने वाला है, वहां पर हम ये सारे नोटेशंस यूज करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज क्या समझने की जरूरत है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, NPN और PNP। NPN ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन पता होना चाहिए, PNP ट्रांजिस्टर का एक्शन पता होना चाहिए। यू शुड नो दैट एमीटर करंट इज इक्वल टू IB प्लस IC, where IC consists of 2 components. One is because of the injected current and another one is the reverse saturation current। ठीक है, उसके बाद और हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि 3 configurations में we can connect a transistor in common base, common emitter and common collector। और अगर अभी ये configuration समझ में नहीं आई है तो confuse मत होना, इन सारी configurations को अभी हम आगे in detail एक एक करके देखेंगे। और हमने क्या देखा था, DC करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जो डेफिनेशन होती है करंट गेन की, दैट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट करंट। तो कॉमन बेस में आउटपुट करंट इज द कलेक्टर करंट, इनपुट करंट इज द emitter current। So the DC current gain of a transistor in common base configuration is denoted by alpha DC equal to IC upon I
E and it is usually less than 1. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है ट्रांजिस्टर की उसको इन डिटेल देखेंगे और पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, पूरा सर्किट डायग्राम बना के। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम पूरा सर्किट डायग्राम जो है बनाते हैं और किस तरीके से हम इस ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो अगर आज कॉन्फ़िगरेशंस क्लियर नहीं हुई हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इन डिटेल एक एक करके हम सारी कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ेंगे।